Okay, Sneha, so let's go ahead with the biomolecules part. We are going on with a very important topic. So yesterday we had completed the discussion about nucleic acids, जिसमें हमने DNA, RNA पूरी तरह से समझ गए. And the last part for this lesson, which is remaining, which is one of the very important topics, and that is all about enzymes. Okay, so we will discuss about enzymes. Okay, completely with respect to their activity, with respect to their physiology and their working. उसका types, उसका nomenclature सब कुछ आएगा. Okay, and then that will be followed by the last part of the topic, which is another very interesting, which from biological point of view, that is about different types of metabolites. ठीक है, so पहले हम enzymes के बारे में बात करते हैं. ठीक है, so now see, you have already learnt about photosynthesis as of now, right? And in the lower classes में respiration वगैरह के बारे में study किया है, cells cell structure के बारे में study हो चुका है, right? So by now you know very well that inside a living cell at any given time there are lots of reactions that keep taking place. Okay, so cell को depending upon the type of the cell, okay, and which part of the body in the plant or animal the cell is present, the activity is very continuous. Okay, based on that, every activity, every reaction that is taking place in the cell is something which requires a catalyst. In chemistry you must have studied about catalyst, है ना? तो catalyst का मतलब है any substance which actually does not take part in a reaction, but its presence will influence the rate of the reaction. ठीक है, अब सेल को जो भी एक्टिविटी करना है, लाइक फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कितना फास्ट करना है, कितना सारा फूड प्रोड्यूस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल. Okay, the different steps of photosynthesis you can imagine. Okay, including like you have also studied about human nutrition, so the reactions which are taking place for digestion, in सब के लिए देखना there are enzymes present, correct? So when you talk about biomolecules, like we have studied about carbohydrates, fats, yeah, lipids, we have studied about proteins, okay, we have studied about nucleic acids. So in such cases enzymes also play a very important role. तो किसी भी सेल के अंदर at any given time there are so many reactions which are taking place, तो ये सब के लिए responsible है enzymes. If the enzymes would not have been there in the cell, these reactions would have taken place. हम लोग ये नहीं कहते कि reaction नहीं होगा. Okay, reaction will happen, but it will be very slow. So cell के requirement के हिसाब से वो reaction होगा नहीं, especially जैसे energy production वगैरह का काम है, so where the cell will require constant supply of energy. So if the enzymes are absent, the energy production will be very slow. So ultimately the overall working of the organism will be affected. जैसे photosynthesis का जो dark phase है, where the assimilation of carbohydrates are taking place, accumulation of carbohydrates, तो वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन में कितना एटीपी और कितना NADPH2 बना. तो अगर लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स कम पड़ गए या नहीं काम कर रहे या है ही नहीं, so the light reaction will be affected, which in turn will affect the dark reaction also. Getting it? तो ये एंजाइम जो है वो बहुत जरूरी है. ठीक है, so going to the brief history of these enzymes, there was a German chemist whose name was Edward Buchner. Okay, अब नाम याद रखना है, साइंटिस्टों के नाम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना है. ठीक है, I remember yesterday you said Robert. Smart answer. Okay, तो एंजाइम्स के मामले में इनका नाम याद रखना है, एडवर्ड बुचनर. He was the one who discovered enzymes by accident. Imagine, by chance discover कर लिया. Okay, तो उसमें क्या हो गया कि बुचनर ने डिस्कवर किया लिविंग सेल्स were not necessary, but yeast extract could bring about fermentation. You know yeast, bakers yeast करके बोलते हैं, confectionery में यूज होते हैं, right? And Saccharomyces cerevisiae is the name.
सो ईस्ट में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिस वजह से फर्मेंटेशन होता है एंड यू गेट अल्कोहल आउट ऑफ इट। तो ये चीज किसी लिविंग सेल के बाहर भी पॉसिबल हो रहा है अगर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला जाए तो। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बुशनर। ओके, पहले ऐसा माना जाता था कि लिविंग सेल के अंदर हो रहा है फर्मेंटेशन, बट देन इट वाज फाउंडेड दैट लिविंग सेल है या नहीं है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगर है तो फर्मेंटेशन हो जा रहा है। दैट मींस देयर इज समथिंग इन द ईस्ट which is bringing about the fermentation. Okay, so he was the one who coined the term enzyme. Okay, ये वर्ड कैसे बना? एंजाइम, एन आया है इन से, एंजाइमा का मतलब हो गया ईस्ट। ओके, तो दैट मीन्स उसने सबसे पहले डिस्कवर किया ईस्ट में, दैट्स वैसे ही नाम पड़ गया इन ईस्ट, विच मीन्स एंजाइमा। ओके, तो ये कॉमन सा टर्म बन गया, दो इट वाज डिस्कवर्ड इन ईस्ट, दैट दिस इज अ कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर ऑल द बायोकैटलिस्ट। So when you talk about enzymes, instead of calling it just a catalyst, the better term would be biocatalyst. Because enzymes जो है ये living cell के बाहर नहीं बनते. That's why we are studying it under biomolecules. This is a substance which is produced inside the living cells. Okay, तो ये जो enzyme है, each enzyme will catalyze a small number of reactions. It's like simply speaking कि it's like a lock and key, कि हर ताले का एक ही चाबी होता है। Same way, every enzyme will have its own substrate. Okay, that substance upon which the enzyme acts, उसको बोलते हैं substrate. So every enzyme has got its own substrate. ठीक है, तो words का meaning समझ में आ गया? ठीक है, now there is something called endoenzymes. Okay, endoenzyme का मतलब है, endo का मतलब है inside, we use the word like that normally, right? तो endo मतलब inside, तो ऐसा कोई living cell inside which the enzyme is produced and the enzyme is used within the same cell. ऐसा नहीं कि सेल से रिलीज हुआ कहीं और गया दूसरी जगह पे जाकर रिएक्शन किया. In that case they are called as exoenzymes. Okay, ऐसे दो वर्ड्स आते हैं. Endoenzyme मतलब the cell in which it is synthesized, the enzyme is used in the same cell. And exoenzyme का मतलब है the cell in which it is synthesized but their effect is in some other cell. ठीक है, सो जैसे एंडोएंजाइम के एग्जांपल आएंगे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइम. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. दे आर ऑल एंडोएंजाइम्स. एक्सोएंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मैनी फंजाई रिलीज इट. दैट मीन्स अभी ये प्रॉपर्टी जब समझ में आ गया स्पेशली एक्सोएंजाइम्स का कि देयर आर सर्टेन फंजाई which are able to produce the enzyme within their cells and at the same time they are releasing it outside the cell and we are able to extract it, preserve it and still we are able to use it outside the cell. तो उसका प्रॉपर्टी जो है वो बदलता नहीं है, वो एंजाइम काम करता है. Okay, then such enzymes are very economically important for us. ठीक है, हम लोग भी लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो अमाइलेस एंजाइम रहता है, तो वी गेट इट इन अ पाउडर्ड फॉर्म. उसको जब पानी में मिलाकर सोल्यूशन बना देते हैं, दे आर स्टिल फंक्शनल. ठीक है, ओके. तो एग्जांपल ये देख, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेनेट, एक एंजाइम है. ओके, ये क्या करता है कि दे कंटेन रेनिन एंजाइम. टैबलेट का नाम है रेनेट बट उसमें होता है रेनिन एंजाइम. ओके, विच दिस वन कैन कोऑगुलेट द मिल्क प्रोटीन कॉल्ड केसीन. मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसीन. ओके, जिसको कोऑगुलेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक ऑफ काफ. तो चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत काम का चीज है. तो ये एक एग्जांपल हो गया एक्सोएंजाइम का, कि काफ के स्टमक में से वो एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया, रेनिन को टैबलेट फॉर्म में प्रिजर्व किया एंड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं चीज बनाने के लिए.
ओके, दैट्स एन एंजाइम। बैकग्राउंड समझ में आ गया एंजाइम्स का? ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन आर कॉल्ड प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दोज एंजाइम्स which are chemically only proteins. There is no other chemical group in the structure of the enzyme. Okay, तो उसका example आएगा proteases. Okay, तो इस name proteases से ही पता चल रहा है कि they are the ones which can break down या split protein molecules. They are examples of purely proteinaceous enzymes. Second type is conjugated enzymes. Okay, now when we discussed about the proteins, उसमें हमने देखा था simple proteins and conjugated proteins. Conjugated protein का मतलब है a simple protein molecule having some other non-protein group attached to it. तो जैसे हमने glycoprotein, lipoprotein ऐसे करके नाम दिए थे. Okay, so when a protein molecule has got any other non-protein prosthetic group attached to it, तो उसको बोलते हैं conjugated protein. तो यहाँ पे वर्ड है conjugated enzymes. ओके, तो conjugated enzymes मतलब उसी तरह का प्रोटीन नेचर है which has got a non-protein prosthetic group attached to it. ठीक है, सो जो prosthetic group है that is firmly attached by chemical bond and it cannot be removed easily by hydrolysis. अगर उसको बहुत strong chemical reaction से prosthetic group को निकाल दिया then the protein group of that enzyme which is the main part वो हो जाता है inactive. Okay, so if you talk about purely proteinaceous enzyme they are easy to handle, but comparatively conjugated enzymes are more relatively stable because they have a very strong bond with the prosthetic group. ठीक है, ये दो पार्ट समझा अच्छे से केमिकली. सो अल्टीमेटली एंजाइम्स अगर बोला जाए तो टोटली दे आर ऑल प्रोटीन्स. इसलिए ऐसा एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. प्रोटीन्स के अलावा एंजाइम्स का दूसरा कोई केमिकल नेचर नहीं है. लाइक दे आर नॉट लिपिड्स, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स और एनी अदर मॉलिक्यूल, दे आर प्रोटीन्स. ठीक है, सो यहाँ पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स या फिर आयंस, या तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो कोई ऑर्गेनिक आयंस, इनका जरूरत पड़ता है एंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए. ओके, सो ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर टाइटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम उनको बोलते हैं कोएंजाइम्स. ओके, दे आर कॉल्ड एज कोएंजाइम्स. यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. दे आर नथिंग बट organic compounds which are attached tightly to the protein part of the enzyme. ठीक है, similarly those which are organic ions, inorganic ions, okay, they are loosely attached to the protein part, तो उनको बोलते हैं cofactors. तो ये दो टर्म्स के मीनिंग याद रखना है, coenzymes and cofactors. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम ये दोनों याद रखना जरूरी है. कोएंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रोटीन पार्ट से अटैच्ड है टाइटली, एंड कोफैक्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक आयंस जो भी प्रोटीन पार्ट से अटैच्ड होता है बट लूजली अटैच्ड. ओके, तो ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स के एग्जांपल यू नो मैं रिमेंबर दिस, फोटोसिंथेसिस में आया था NAD, हाँ. है ना. दूसरा ये भी आया था FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. हाँ. C3 पाथवे में हमने इसके नाम देखे थे, राइट? NAD, FMN and all. So they are examples of coenzymes. So now you understood the coenzyme word. रूबिस को भी आएगा ना? रूबिस को पूरे एंजाइम का ही नाम है. ओके, ये कोएंजाइम्स है. ठीक है, सो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कोफैक्टर्स हम बोल रहे हैं, दे आर नथिंग बट मेटल आयंस. तो जैसे Cu+2, Zn+, ओके, Fe+2, Mn+2, आयन, ये सब कोफैक्टर्स है.
तो डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम, ईच एंजाइम कैन हैव देयर ओन कोफैक्टर। जैसे एग्जांपल दिया एंजाइम कैटालेस, इसका कोफैक्टर है आयन Fe+2। सिमिलरली पेप्टिडेज, इसका कोफैक्टर है मैंगनीज। ओके, तो कभी कभी कुछ मेटल कोफैक्टर्स जो रहते हैं ना, we also call them as enzyme activators because they stimulate the functioning of the enzyme better. तो अगर ऐसा बोल सकते हैं कि एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट, तो ये जो कोफैक्टर्स एंड को एंजाइम्स है ये उनके भी कैटलिस्ट हो गए। गेटिंग इट? ठीक है, ये एग्जांपल्स और ये टर्म्स सब समझ में आ गया। को एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल भी याद रखने हैं। ठीक है, लॉट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया एंजाइम्स का नेचर, केमिकल नेचर के बारे में हमने स्टडी किया। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया प्रोटीनेशियस नेचर, कि ऑल एंजाइम्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, वेदर इट इज सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बट अल्टीमेटली बना हुआ है प्रोटीन्स का। ओके, secondly enzymes have a 3-dimensional conformation, 3D जैसे बोलते हैं ना। ओके, तो 3D का मतलब यह है कि each enzyme molecule, okay, like as we said in the beginning कि enzymes are substrate specific, कि every enzyme will act upon only a particular substrate। तो उस एंजाइम के मॉलिक्यूल में उसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बाइंड करने का जगह रहेगा। ओके, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, which are present on the enzyme molecule to which the substrate will combine. Substrate is your reactant. ठीक है, so that point on the active site where this substrate will join, उसको बोलते हैं substrate binding site। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हर ताले का एक चाबी होता है, तो that key for the lock you cannot insert in any point on the lock, उसका पर्टिकुलर होल ओपनिंग रहता है जहां पे हम की इंसर्ट करते हैं, वो उसका एक्टिव साइट का बाइंडिंग साइट है। अंडरस्टूड दिस 3D कॉन्फॉर्मेशन? यस। ठीक है, तो प्रोटीनेशियस नेचर फॉलोड बाय 3D कॉन्फॉर्मेशन, देन एंजाइम्स का होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली उसका फंक्शन तो वही है कि बायोकैटलिस्ट है, सो दे आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड दे इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, but the best part is at the end they remain unchanged. Okay, वो दूर से catalyze करेंगे but their own molecular nature will not change. That's why enzymes are actually not the reactants, they are only catalyst. तो जो enzymes cells के अंदर या तो कभी चाहिए तब बनेगा, या तो there will be a storehouse of the enzyme in the cell. So wherever they are stored for some time till the time it is used, they remain in an inactive state. ओके, बट जैसे कुछ मेटल कोफैक्टर्स वगैरह हो गए या दूसरा कोई कंपाउंड्स आ गया तो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड जब एक्टिवेट किया जाएगा तो देयर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ओपन्स एंड दे आर एबल टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो दिस इज हाउ द एंजाइम्स एक्चुअली फंक्शन। ठीक है, तो जब रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट जो है वो बन गया, रिलीज हो गया, दे रिमेन एक्टिव टू कैटलाइज अगेन, समटाइम्स दे कैन डू दैट आल्सो। उनको इनएक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, दे विल रिमेन एक्टिव बिकॉज वैसे वो सबस्ट्रेट रहेगा तो ही एक्टिव रहेगा ना। ऐसा, ओके, and as far as the quantity of enzymes needed, a very small quantity of the enzyme is enough to catalyze the transformation of the substrate to the product. ओके, तो बहुत ज्यादा एंजाइम का जरूरत नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा ही एंजाइम ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कि सुक्रेस, ये वर्ड ह्यूमन न्यूट्रिशन में आया था इफ यू रिमेम्बर। सुक्रेस जो एंजाइम है, दिस कैन हाइड्रोलाइज, you can see 1 lakh times of sucrose as compared with its own weight. सुक्रेस क्या करता है, सुक्रोस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाते हैं। तो एक सुक्रेस एंजाइम काफी है 1 लाख सुक्रोस को ब्रेक डाउन करने के लिए, सो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। तो सेल में रिएक्शन एफिशिएंट भी हो जा रहा है, एट द सेम टाइम देयर इज नो वेस्टेज आल्सो। दैट्स हाउ इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी फंक्शंस। समझा ये पार्ट? हाँ।
Okay, then specificity, as I said, कि every enzyme is able to catalyze one specific reaction. It is substrate specific. तो सेल के अंदर ये फायदा हो जाते हैं, because at any given time a cell can have a lot of enzymes present in it. तो कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे अगर काम करेगा, यू कैन इमेजिन द हैवॉक दैट विल बी क्रिएटेड इनसाइड द सेल। कि किसी भी सबस्ट्रेट को जाके कोई भी एंजाइम बाइंड कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो सेल के अंदर तो भेलपुरी बनता जाएगा सारे प्रोडक्ट्स का। ओके, सो दैट इज अवॉइडेड विद दिस वे कि एवोल्यूशन जब हुआ तो नेचर डिसाइडेड कि लेट एवरी एंजाइम बी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक so that there is no mismatch, and whatever is a product desired only that will be produced within the cell. इसीलिए वो कैसे प्रॉपर्टी एनहेंस होते हैं, every enzyme will have a specific substrate binding site. ठीक है, that is called as the specificity of action, and that's why it is the most significant property of enzymes. ठीक है, then reversibility. Chemistry में you must have learnt about reversible reaction. हाँ, What is the meaning of that? मतलब एरो का था, एक एरो मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो राइट That टू is लेफ्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और लेफ्ट टू राइट रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो ये एरो मार्क से हम इंडिकेट करते हैं, बट रिवर्सिबल हाँ रिएक्शन का मीनिंग ये है कि इफ द रिएक्टेंट्स आर टर्निंग इनटू प्रोडक्ट्स, देन द प्रोडक्ट्स कैन आल्सो हाँ रिएक्ट एंड गिव बैक द रिएक्टेंट्स। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि एंजाइम्स जो है दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, यू नो द मीनिंग ऑफ पीएच, राइट? हाँ इट इंडिकेट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। हाँ ओके, तो हर एंजाइम का ना जो एक्टिविटी है, जैसे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है उसके ऊपर एंजाइम का एक्टिंग हो रहा है एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये जो रिएक्शन है ये कितना स्लो कितना फास्ट होगा, ये उस मीडियम का टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड करता है। तो कंसिडरिंग टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, ओके, इट इज लाइक बिलो 10 डिग्री, बिलो 5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कि एंजाइम्स बिकम इनएक्टिवेटेड। ओके, दे बिकम inactive at very low temperature, and similarly at a very high temperature 60 degree 70 degree या above, then they become denatured. Okay, so optimum, there is something called, the word is optimum. Optimum का मतलब है that particular pH या temperature या वो range where the enzymes are working most efficiently. ओके, उससे कम या उससे ज्यादा रहेगा तो एंजाइम्स का फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्टिमम पीएच इज नेसेसरी फॉर एनी एंजाइम और ऑप्टिमम टेम्परेचर इज आल्सो नेसेसरी फॉर एनी एंजाइम। तो हर एक एंजाइम का डिफर करता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल दिया है, द एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। नाउ स्टमक में यू नो वेरी वेल गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है which is responsible for the digestion of proteins mainly. So it is already in a very highly acidic condition. तो ये एंजाइम भी ऐसा इवॉल्व हो गया है कि इट कैन वर्क बेस्ट एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 2। इमेजिन, सो एसिडिक। तो स्टमक में इतना एसिडिक मीडियम है, तो एंजाइम का अगर ऑप्टिमम पीएच अल्कलाइन होता तो ये एंजाइम स्टमक में काम ही नहीं करता। So that's why the enzyme is also adapted in such a way that it is able to function best at the optimum pH of 2. Okay. Similarly, ये तो stomach में हो गया, तो उसका next part duodenum में we have another enzyme called trypsin. Okay. Now this is most active at an optimum pH of 9.5, जो है alkaline. तो stomach में 2 and duodenum में 9.5. Imagine the difference. Because जैसे ही वो duodenum में आता है, there are bile salts which are produced from the liver and the gallbladder. So those bile salts immediately turn the medium into alkaline. Sodium carbonate वगैरह रहता है ना उसमें. Okay, so they both are protein digesting enzymes. Trypsin भी proteins पे काम करता है and pepsin भी proteins पे काम करता है. But the enzymes are so different कि दोनों का optimum pH कितना drastic difference है दिखा.
अंडरस्टूड दिस ऑप्टिमम पीएच का रिक्वायरमेंट प्रॉपरली? Yes. ओके, सिमिलरली टेम्परेचर का भी देखना, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स जो है दे वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 20 and 35, which is considered to be the most favorable. Correlate this with the climatic condition, कि जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हम्म, कैसा है, समवेयर इन द रेंज ऑफ 20 to 35 मोस्ट ऑफ द ईयर, वेरी रेयरली इट हाँ गोस बिलो 20 या अबाउट 35 समथिंग। तो पूरे साल आज ऑलमोस्ट बिलो अपने लिए, 20 था। हाँ आज बहुत ठंडी था, राइट। इट इज लेस नाउअडेज, राइट, और दैट इज एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, तो वो टॉपिक ही अलग है। तो हम्म, इससे हमें पता चलता है, देखो यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ रहे हैं, बट यू आर कोरिलेटिंग दिस विद क्लाइमेटिक चेंज, कि हम्म, क्लाइमेट अगर ऐसा बदल जाएगा कि टेम्परेचर्स गो टू द एक्सट्रीम एंड्स बियॉन्ड द फेवरेबल रेंज, तो एंजाइम्स काम करना स्लो कर देंगे। तो इस वजह से कैसे है कि अपना खाना वगैरह डाइजेस्ट करने का एफिनिटी कम हो जाएगा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, एनिमल्स का बहुत सारा प्रोसेसेस इफेक्ट हो जाएगा, तो एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो क्लाइमेट चेंज का ये भी असर है, गेटिंग इट, बिकॉज एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 and 35, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी से कि जब हम खाना खा रहे हैं, okay, like we know the food goes into the stomach followed by the duodenum where maximum chemical digestion is taking place. तो बोलते हैं कि खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद, ओके, गर्म पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, यू नो दिस। ठंडा पानी चलता है ना। ठंडा चलता है बट आइस कोल्ड नहीं, नॉर्मल हाँ कूल मतलब वो वाटर इज, नॉर्मल घर का। यस, जो मटके का पानी होता है दैट इज गुड, हम्म, बट एकदम ठंडा भी नहीं, बिकॉज नाउ यू कैन सी दिस कि जो हम खाना खाएंगे हाँ। वो अल्टीमेटली इट विल गो टू द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन ना, वेयर द डाइजेशन विल टेक हम्म, प्लेस। तो अगर हम लोग एकदम ठंडा या एकदम गर्म कुछ लेते हैं तो वो पूरा टेम्परेचर चेंज कर देगा, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड, तो डाइजेशन विल बी अफेक्टेड, हम्म, इनडाइजेशन होने के चांसेस है, गेटिंग इट। नाउ दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, यू अंडरस्टूड हाँ। इट? ठीक है, तो ठंडा भी ना कैसा है, किसी भी मौसम में इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि जो फ्रिज का ठंडा पानी होता है और जो मटके का ठंडा पानी होता है, like there is a difference between cold and chilled, okay, so chilled one is always better as compared to cold, no doubt हम्म, वो अच्छा लगता है एकदम गर्मी के टाइम पे, बट जितना हो हाँ। सके मटके वाला पानी पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा, ओके, ट्राई दैट। ओके, सो एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज समझ में आ गए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच वगैरह, हाँ। ठीक है। इसका एक और चीज बताता हूँ, सी, इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं, ओके, कि जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, यू नो ना ग्राफ कैसे थे बनाते हैं, हाँ। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे सपोज है प्लॉट टेम्परेचर, ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए से अप टू 50 या 60 डिग्री तक, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन डिफरेंट वेज, ओके, तो उसका ग्राफ जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा, कि इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री के आसपास या वेरी लो टेम्परेचर में एंजाइम एक्टिविटीज नील या वेरी लेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ रहा है, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंजाइम एक्टिविटी इज द मैक्सिमम, दैट इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो पॉइंट आएगा, उससे ज्यादा अगर करते गए तो फिर एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होते गया, and then after a certain stage enzyme is not functional, ऐसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द सेम थिंग यू कैन डू इवन फॉर पीएच डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम, समझा ये पार्ट? ओके, तो एंजाइम्स के एक्टिविटी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझा कैसे सर रिप्रेजेंट कैन करते हैं यू रिपीट? ये? बीच में नेटवर्क इशू हुआ। अच्छा, ओके, आई जस्ट डू दैट।
Okay, see, if I want to represent the activity of an enzyme in a graphical way, ठीक है, तो मैं x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ बना सकता हूँ. You know how to make a graph, हाँ. है ना? तो सपोज x एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग टेम्परेचर या तो pH. ठीक है, this can be carried out in the laboratory also. You will do some basic enzymatic reaction in a test tube, okay, and you will check the reaction across different temperatures या different pH. तो ये 0 से स्टार्ट करके 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 तक मैं ले सकता हूँ, या whatever. I can take the range. Similarly, on the y-axis, I'll be showing the activity of the enzyme. Okay, so activity of the enzyme also will depend upon the amount of the substrate used, या the amount of the product formed. In both the ways I can represent. तो अगर मैं टेम्परेचर या pH एक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो I will be getting a graph somewhat like this. इस तरह का ग्राफ मिलेगा, a curve. Okay, तो where इसका मीनिंग क्या हो गया कि in the initial stage at a very low temperature या pH, the enzyme activity is almost zero या very less, and then it keeps on increasing with the increasing temperature या pH. At a certain stage, the you will get, ये जो कर्व में ये जो हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं पीक. इसका मतलब है it is the maximum activity of that enzyme at that temperature या that pH. इससे ज्यादा अगर मैं बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर या pH को, तो then there is a decline in the activity. वो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है. At certain stage, again the enzyme will become non-functional. समझा ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया? Yes. ठीक है, so that is the meaning of this कि we are plotting the enzymatic reaction in the graphical way. तो नॉर्मली किसी भी एंजाइम के लिए वो जो पीक बनाते हैं, जैसे अब ये एग्जांपल हमने देखा कि पेप्सिन का ऑप्टिमम क्या है, ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम क्या है, तो दैट हैज बीन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. कि वही सबस्ट्रेट वही एंजाइम अलग अलग टेम्परेचर पीएच में देते, उसको ग्राफ में प्लॉट करते एंड यू गेट अ कर्व. तो वो कर्व जो है वो उसका ऑप्टिमम पीएच है. ठीक है, दैट इज डन इन द लेबोरेटरी. तो ये हो गया एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? मतलब नाम देना. करेक्ट. कि एंजाइम्स को हम नेमिंग कैसा करते हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर नाउ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. कि हर एंजाइम का अपना अपना सबस्ट्रेट है, हर एंजाइम का एक्टिविटी अलग है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि अलग अलग तरीके से उसको नाम दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू नेम द एंजाइम. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि समटाइम्स एंजाइम्स के नाम के एंड में सफिक्स में एस करके वर्ड लगाते हैं. नॉर्मली बहुत सारे एंजाइम में देखना एस करके एंडिंग आते हैं. तो उसका मतलब ये कि जो उसका सबस्ट्रेट है, टू दैट सबस्ट्रेट यू ऐड एन एस एट द एंड. तो नाम से ही पता चल जाएगा ये कौन से सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है. जैसे सुक्रेस, तो नाम से पता चल रहा है इट एक्ट्स अपॉन सुक्रोस. ओके, न्यूक्लियस, so this one acts upon nucleic acids. Protease, acting on proteins. So this is one way of naming the enzymes. समझा ये? हाँ. ठीक है. Another way by which you can name it is according to the type of the function which they perform. कि वैसे तो वो कैटलिस्ट है, बट एग्जैक्ट फंक्शन क्या करते हैं, कैसे वो कैटलाइज करते हैं. तो समटाइम्स जैसे एग्जांपल ही देखना, यू विल अंडरस्टैंड. इफ यू कॉल द एंजाइम एज डीहाइड्रोजनेस, तो डी का मतलब हो गया रिमूवल, हाइड्रोजन. तो ये क्या कर रहा है, इट इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट. कहेंगे डीहाइड्रोजनेस एंजाइम रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट. सिमिलरली दूसरा है कार्बोक्सिलेज. तो कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एंजाइम क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेज कर रहा है.
Similarly, if you remove carbon dioxide from a molecule, that is called decarboxylation. तो एंजाइम का नाम भी हो गया decarboxylases. Okay, oxidases नाम से पता चल रहा है, that is bringing about oxidation. So based on the type of the function, you can get the name of the enzyme. समझा अच्छी तरह से? हाँ. ठीक है. Sometimes the names of some enzymes are kept from the source from which they are obtained. कि कौन से प्लांट या एनिमल में से. ओके, जैसे पपाया में से जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पैपेन. तो नाम से ही पता चल रहा है पैपेन पपाया. Especially women, girls and women are told कि in during the menstrual cycle especially papaya consumption should be avoided. Okay, and even for pregnant women it is to be avoided. Okay, because ये जो papain enzyme है, okay, ये what you can say, it brings about breakdown of the uterine wall. Okay, तो pregnancy के time पे it can lead to miscarriage. ओके, यूट्राइन वॉल के मर्शल प्रोटीन्स पे काम करेगा तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एंड स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड ऑल, इट कैन बिकम मोर पेनफुल इफ पपाया इज कंज्यूम्ड बिकॉज़ दिस पैपेन एंजाइम. मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हुआ तो पपाया खाने बोलते हैं. ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मतलब कम हो गया तो शायद खाने बोलते हैं, हाँ, सो दैट इट एनहांसेस. हाँ, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो नहीं खाना चाहिए, तो और तकलीफ पड़ सकता है. ओके, कच्चा पपाया कि पक्का? ये पपाया दोनों में से आता है, पैपेन एंजाइम है ना, तो पक्का फ्रूट खाना ही बेटर है. Yes, sir. Otherwise, in normal days, not a problem at all. But these are the only situations when papaya should be avoided. Okay, because उसमें papain enzyme है. ठीक है. Similarly, bromeliaceae करके एक plant का family है, जिसका commonest example है pineapple. Okay, तो you know the taste of pineapple. जैसे उसको खाते हैं या उसका जूस पीते हैं, yes. वो चिपकू चिपकू सा एकदम फीलिंग आता है, राइट? तो उसमें एंजाइम होता है ब्रोमेलिन. ओके, प्लांट के फैमिली का नाम है ब्रोमेलिएसी, तो उसमें से नाम पड़ा है ब्रोमेलिन. ओके, लाइक दैट द नेम्स आर गिवन. यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में देख रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर दैट. ठीक है. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट ऑन विच इट एक्ट्स द नेम एंड्स विद एस. Okay, secondly, based on the type of the function that they do, the name also reflects that. Okay, thirdly, from the source from which the enzymes are obtained, because ये biomolecules हैं तो living cells के अंदर बनते हैं, तो कहाँ से बनता है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है. Okay, and then there is something called the जैसे केमिस्ट्री में you know IUPAC nomenclature, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. You know IUPAC nomenclature, है ना? तो उसमें एक तरीका रहता है उसका नेमिंग करने का कंपाउंड्स का. हाँ, उसी तरह से एग्जैक्टली यस. तो उसी तरह से देयर इज इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर. ये भी एक अलग से, तो एंजाइम्स का पूरा स्टडी ही अलग फील्ड है. बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, स्पेशली प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, एनिमल फिजियोलॉजिस्ट. ओके, तो एंजाइम का जो नेम है इसमें इट एंड्स विद एस, but the name will have 2 words. तो वो ज्यादा स्पेसिफिकली बताते हैं कि कौन से सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं और क्या फंक्शन कर रहा है. दैट मीन्स यू आर एडिंग क्यूमुलेटिवली द फर्स्ट 2 क्राइटेरिया बोथ. जैसे एग्जांपल देख, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज. इसका मतलब क्या हो गया, इसका सबस्ट्रेट है पायरुविक एसिड एंड इसका फंक्शन है पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल. तो नाम में ही रिफ्लेक्ट हो गया. समझा? That's how the 2 names are given. This is according to the International Code of Enzyme Nomenclature. Okay, that is another very interesting one. जैसे एग्जाम हो गया ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस. ओके, ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल याद रखना है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये काम कर रहा है ट्रांस अमाइनेस, मतलब ट्रांसफरिंग एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट.
इसलिए नाम में तीनों वर्ड्स आ गया, समझा? केमिस्ट्री वाला इजी है, इसमें इतना मीनिंग। हाँ मतलब अभी बहुत सारे एंजाइम्स है नेचर में, सेल के अंदर, तो हाँ कुछ नहीं कर सकते ना, बट इसका नेमिंग इसके लिए ऐसा रखा जाता है सो दैट इट बिकम्स इजियर टू रिमेम्बर। अगर एकदम ही कुछ अलग नाम रख दिए होते तो इट वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर देन, राइट? इसीलिए ऐसा नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो हाँ ट्रांस अमाइनेज, ट्रांस वर्ड का मीनिंग हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग व्हाट? अमाइनो ग्रुप, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायरुवेट, इजी, ठीक है? केमिस्ट्री में आईयूपीएससी कैसे करते हैं वैसे, ओके? सो नोमेनक्लेचर हाँ का तरीका समझा अलग अलग वेज में, हाँ okay? So now let's talk about the classification enzymes का. Now when you talk about classification of enzymes, उसमें अलग अलग तरीके के classifications है. Like the first one is oxidoreductases. तो oxidoreductases का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, they are the ones which catalyze oxidation and reduction reaction both. ओके, रिडॉक्स रिएक्शन करके बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, ओके? तो इसमें क्या हो गया कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें क्या हो हाँ जाएगा कि सबस्ट्रेट में या रिएक्टेंट्स में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रेड्यूस होगा, तो दैट्स व्हाई सच एंजाइम्स आर ग्रुप्ड अंडर ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। तो जैसे एग्जांपल देख, अब ये नाम के मीनिंग बता, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकालता है। करेक्ट, हाँ करेक्ट, दैट्स इट। हाँ अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसलिए नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। नाउ सी द रिएक्शन, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो बन गया एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एंड जो हाइड्रोजन या अल्कोहल से रिमूव किया वो ऐड किया NAD प्लस में, तो वो बन गया NADH2। हाँ ओके, तो ये एग्जांपल हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेसेस का, इसमें एक में हाइड्रोजन रिमूव कर रहे, दूसरे में ऐड कर रहे, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग अंडर ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। क्लियर अबाउट दिस? यस ओके, नेक्स्ट वन है ट्रांसफरेसेस। ट्रांसफरेसेस क्या हो जाएगा? दे, नाम से ही पता चल रहा है, दे आर ट्रांसफरिंग सर्टेन ग्रुप्स हाँ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ओके? तो इसका एग्जांपल दे, ग्लूकोकाइनेस। Now, whenever the name of an enzyme has the word kinase, तो याद रखना है it is associated with the phosphate group या ATP, ओके? काइनेस आया मतलब फॉस्फेट या ATP आएगा, ठीक है? तो अभी जैसे एग्जांपल देख, ये ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स हो गया, तो ग्लूकोज प्लस ATP, तो ATP में फॉस्फेट ग्रुप है, वो ATP से निकल के ग्लूकोज में ऐड हो गया, ट्रांसफर किया, तो यू आर गेटिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज इट इज है, बट उसके 6th कार्बन में फॉस्फेट ऐड हो गया, एंड वो फॉस्फेट कहां से आया? ATP से, तो ATP का ब्रेकडाउन हो गया तो बन गया ADP, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांसफरेसेस। समझा ये रिएक्शन? यस इजी है ना? दिखता है बहुत बड़ा चौड़ा कुछ है ऐसा, बट इट इज इजी, ओके? देन नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है डायरेक्ट ब्रेकडाउन, कि रिएक्टेंट्स में देयर इज ओनली वन सबस्ट्रेट व्हिच इज जस्ट ब्रोकन डाउन, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ओके? तो जैसे सुक्रेस, ओके, तो उसमें सुक्रोज का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिला, नो ट्रांसफर ऑक्सीडेशन कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेकडाउन, तो ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। दूसरा एग्जांपल आएगा अमाइलेसिस। तो अमाइलेस किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। स्टार्च के ब्रेकडाउन से अमाइलेस का क्या होता है? अमाइलेस कैटेलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड यू गेट ग्लूकोज, रिड्यूसिंग शुगर्स मिलते हैं,
ओके सिमिलरली प्रोटीएसेस के वजह से okay similarly protease enzyme, they are the ones that break down the proteins and you get amino acids, peptides, okay या peptones, ऐसे breakdown products मिलते हैं. Lipases act upon lipids, so you get fatty acids and glycerol. So such compounds, such enzymes are called hydrolases. ठीक है. Then you get something called lyases. Lyases का मतलब है कि they are involved in elimination reaction. Okay, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि from the substrate, okay, there will be some group of atoms that will be lost, okay, and there will be another product which is formed. See, यहाँ पे हाइड्रोलिस में क्या हो गया कि एक बड़ा मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से दो छोटे बायोमोलिक्यूल्स मिल गए. Okay, but lysis में from one biomolecule, a larger biomolecule, you are getting a smaller biomolecule with some byproduct. तो एक डबल या सिंगल बॉन्ड जैसा रह जाएगा वहां पे. Okay, that's the difference between hydrolase and lyases. Difference समझा दोनों में? Yes. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल देखना एल्डोलेज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज. अब नाम से ही पता चल रहा है उसका फंक्शन बता. हिस्टिडीन में से कार्बन को निकालते हैं. करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल. तो हिस्टिडीन में से जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, you can get CO2 out and what remains is histamine. तो ये lysis वाला रिएक्शन हुआ. It cannot be hydrolysis. Okay. Similarly, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्यूमरेट हाइड्रेटेस. ये फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रेशन होगा. हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो दैट वे द एंजाइम्स फंक्शन. तो अगर एक प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो यू कॉल इट लाइसिस. अगर दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो यू कॉल इट हाइड्रोलिसिस. ऐसे सिंपली याद रख सकते हैं. ठीक है. देन आएगा आइसोमरेसेस. केमिस्ट्री में यू मस्ट हैव स्टडीड व्हाट आर आइसोमर्स. रेड्यूस सिलेबस में था पिछले साल. अच्छा, वेरी गुड. ये रेड्यूस सिलेबस एक और बड़ा मुसीबत है. ये एक चीज छोड़ देते हैं ना, उसके पीछे चेन रिएक्शन हो जाते हैं आगे तक. और ये साल है बट वो नेक्स्ट लेक्चर में. वाह वाह, वेरी गुड. म्यूट हो गई इसने. ये साल है बट वो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है, मतलब नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में. तो कमिंग सून है वो. ओके, बट एनी आइडिया आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर्स मतलब कुछ वो रिलेटेड ही है, वो नॉमेनक्लेचर वो सब के रिलेटेड कुछ. क्योंकि वही टॉपिक में था वो नाम. ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ एक. जैसे नाइट्रोजन. ठीक है, सिंपल एक मॉलिक्यूल एलिमेंट विच यू नो. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या है बता. एटॉमिक नंबर बता पहले. एटॉमिक नंबर 12. ये केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में ना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पूरा अच्छे से कर डाल. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ये सब जो है ना फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यू शुड बी क्लियर, बिकॉज उसके ऊपर पूरा केमिस्ट्री देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. The first 20 6 या तो 7 है शायद. It is 7. 6 या 7 में आता है. 7. हाँ, ठीक है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. तो फोकस वेल ऑन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. ठीक है. हाइड्रोजन, हीलियम,
हाँ, lithium. हाय हेलो वो वाला भी याद किया, उसके बाद बोला। Yes. Okay, good. Hi, hello, listen BBC News on Friday next. हम्म, Right? Yes. तो उसका एटॉमिक मास नंबर है 14. दिस इज द नॉर्मल नाइट्रोजन. दूसरा उसका एक नाइट्रोजन है जिसका मास नंबर है 15. तो N14 और N15. They are two different nitrogen elements, but with different atomic mass, but the same वो atomic आइसोटोप number. हुआ ना? ये आइसोटोप हुआ. करेक्ट. इसी तरह से when you talk about molecules, ओके, तो अभी जैसे मैं ग्लूकोज के बारे में बोलता हूँ, सॉरी, ओके, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. ओके, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. यही फॉर्मूला वी आर यूजिंग द सेम फॉर फ्रक्टोज ऑल्सो. फ्रक्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो सेम है. तो व्हेन द केमिकल फॉर्मूला आर द सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इज द सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर डिफरेंट, वी कॉल देम आइसोमर्स. और ये जो मैंने बताया दैट इज आइसोटोप. तो ये डिफरेंस नहीं वो नहीं, एक मिनट, क्या हो गया? केमिकल क्या? केमिकल फॉर्मूला इज द सेम बट स्ट्रक्चरल हाँ, फॉर्मूला इज डिफरेंट. मतलब स्ट्रक्चर अलग है बट केमिकल फॉर्मूला सेम है। हाँ, अभी जैसे देख ओके। C6H12O6 बोलते हैं तो कार्बन एटम्स कैसे अरेंज है? हाँ, 4 5 सी 6. 6 रहेगा, करेक्ट. तो इसमें उसमें अटैच HOH ऐसा रहता है ना. हाँ तो ये हाँ, अरेंजमेंट जो है, जो हम लोग पूरा मॉलिक्यूल को ओपन करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो बाकी के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग रहेगा, बट ओवरऑल फॉर्मूला कम्स टू दिस वन. ओके देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, समझा? आइसोमर्स का मीनिंग समझा? हाँ ठीक है. हाँ, या तो आइसोमरेसिस जो एंजाइम है, ये क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल में. दैट मींस दे आर कन्वर्टिंग वन मॉलिक्यूल इनटू इट्स आइसोमर. ऐसे एंजाइम को बोलते हैं आइसोमरेसिस. ओके, जैसे एग्जांपल देख, जाइलोस आइसोमरेज. ओके ना, जाइलोस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड उसका आइसोमर रहेगा जाइल्यूलोस और सम अदर मॉलिक्यूल. तो ये एंजाइम जाइलोस को कन्वर्ट करेगा उसके आइसोमर में. दूसरा एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेटिंग कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आइसोमर्स हो गया. तो हाँ इसमें ना कोई एडिशन है ना कुछ रिमूवल है, जस्ट अ कन्वर्जन. ओके, इसलिए एंजाइम का भी नाम रखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज. तो द नेम ऑफ द एंजाइम इज टेलिंग यू क्लियरली व्हाट इज बीइंग कन्वर्टेड टू व्हाट. सबस्ट्रेट का नाम और आगे आइसोमरेज. समझा? हाँ, ठीक है. देन आइसोमरेसिस के बाद नेक्स्ट आएगा लाइगेसिस या सिंथेटेसिस. ओके, लाइगेसिस को हम लोग बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम्स. ओके, लाइगेसिस को बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम्स. यू विल कम अक्रॉस लाइगेसिस व्हेन यू विल लर्न अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन 12th स्टैंडर्ड. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ने मिलेगा. तो वहां पे ये एंजाइम लाइगेस आएगा. डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं. ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? दे आर कैटेलाइजिंग द कोवेलेंट लिंकेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, तो एक बड़ा कोई एनर्जी रिच कंपाउंड होगा लाइक वी नो एटीपी. उसके ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी को यूज करके दो दूसरे कंपाउंड्स को ज्वाइन करते हैं और बड़ा कंपाउंड बनाते हैं. दैट्स व्हाट द लाइगेसिस या सिंथेटेसिस दे डू. समझा? हाँ, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल देख, ग्लूटाथियोन सिंथेटेस.
तो ग्लूटामिक एसिड को सिंथेसाइज करेगा, या फिर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो पायरुवेट को कार्बोक्सिलेशन करेगा बाय एडिंग CO2। ओके, तो पायरुवेट में 3 कार्बन है, एक एक्स्ट्रा CO2 ऐड हो रहा है, ATP का एनर्जी यूज हो रहा है, तो यू आर गेटिंग अ 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलोएसीटेट एंड ATP इज ब्रोकन डाउन। तो एक एनर्जी सोर्स को यूज करके उसके ब्रेक डाउन से थ्रू स्मॉलर कंपाउंड्स आर एडेड टू फॉर्म अ लार्जर कंपाउंड, तो इसलिए जॉइनिंग एंजाइम्स या सिंथेटेज करके बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ओके। Okay, then now we can talk about the mechanism of enzyme action. Okay, आज सिर्फ enzymes का पूरा complete कर देते हैं, the remaining we can do next time. Okay. Okay, because थोड़ा time लगेगा, enzymes पूरा अच्छे से समझना, this is very very important. ये Right? फिजिक्स जैसा क्यों है अभी? नहीं physics, don't worry. एक कंप्यूटर गेम जैसा भी लग रहा है ना? वीडियो हाँ. नहीं है, वो नहीं है। Okay, see, now you know the meaning of the word substrate. ठीक है, हाँ. and you know the meaning of the word active site, कि जहां पर वो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर देयर इज अ सबस्ट्रेट एंड देयर इज एन एंजाइम प्रेजेंट, तो एंजाइम में जो एक्टिव साइट है, यहाँ पर जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा है कि एंजाइम के तरफ एक मुंह जैसा है जहां पर वो सबस्ट्रेट बैठ सकते हैं, अगर वो एंजाइम का सबस्ट्रेट वही है तो स्पेसिफिक होता है ना बहुत। ओके, तो जैसे ये सबस्ट्रेट आकर यहाँ बाइंड करेगा, तो sometimes the molecule of the substrate may not have the same shape as that of the binding site in the enzyme. तो ऐसे में क्या करते हैं, एंजाइम अपने बाइंडिंग साइट का शेप बदल देते हैं ताकि वो सबस्ट्रेट वहां फिट हो सके। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्म, ES कॉम्प्लेक्स करके बोलते हैं। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, then the reaction gets catalyzed and you get your products. Getting it? जैसे इमेजिन कर कि यू आर ईटिंग अ चॉकलेट, कि किसी ने किटकैट चॉकलेट दिया एंड यू आर बाइटिंग इट, तो दैट टाइम द शेप ऑफ योर माउथ विल चेंज व्हाइल ईटिंग बिकॉज यू विल बाइट इट फ्रॉम द फ्रंट। हाँ. बट इमेजिन कर तू पानी पूरी खा रही है, गेटिंग इट? दैट टाइम द एक्टिव साइट विल चेंज इट्स शेप बिकॉज द सबस्ट्रेट इज डिफरेंट। गेटिंग इट? इन बोथ द केसेस हाँ. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन ही गया and the reaction takes place. Getting it? Imagine एक बड़ा सा बर्गर खा रही है, डबल ब्रेड वाला था ना बर्गर, अगर वो हाँ. खा रही है, महाराजा मैक. एग्जैक्टली, यस, हाँ ये सब बराबर याद है ना? ओके, तो व्हेन यू आर ईटिंग दैट, हाउ डू यू ओपन योर माउथ? एकदम ऐसे बोलते हैं ना हिप्पोपोटामस की तरह बड़ा सा, पूरा so that मेसी हो जाता है फिर. right? So depending upon what you are consuming, you change the conformation of your mouth so that you are able to feed on that. ये चीज अपने एंजाइम्स भी करते हैं। ओके, वो मॉलिक्यूल अपना बाइंडिंग साइट का शेप ऐसा बदल देते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो अटैच कर सके, बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फॉर्म्ड। अगर वो बन गया तो रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, सो उसके लिए अलग अलग मॉडल्स प्रपोज्ड है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। द वन मॉडल इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल। ओके, नेम से ही पता चल रहा है, इजी है। तो इसमें क्या है ना कि it was first postulated in 1894 by somebody called Emil Fischer. अब ये नाम ईयर वगैरह में एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर, ओके, यू हैव टू एट्रीब्यूट देयर कंट्रीब्यूशन। तो ये एक्सप्लेन किया था सिंगल सबस्ट्रेट का एंजाइम के ऊपर बाइंडिंग का एनालॉजी। ओके, तो जो लॉक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द लॉक इज योर एंजाइम एंड द की इज योर सबस्ट्रेट। तो हम लोग ताले, जब दरवाजा खोलना है, ताला लगा हुआ है एंड यू हैव द की, ओके, तो यू आर इंसर्टिंग द की इनटू द लॉक ना, तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के अंदर इंसर्ट करना जरूरी है। गेटिंग इट? तो
कोई भी ताले से मैं कोई भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खोल सकता। गेटिंग इट? तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एंड शेप एग्जैक्टली फिट्स करेक्टली इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, देख कि एंजाइम का एक्टिव साइट देख और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन देख, वो प्रॉपर फिट हो गया उसमें एक्टिव साइट में। ओके हाँ इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप को बदलने की जरूरत नहीं, वो सबस्ट्रेट तभी बाइंड करेगा अगर वो शेप में प्रॉपर फिट हो जाए। तो अगर वो शेप में फिट नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ओके तो लॉक एंड की के हिसाब से एंजाइम एक्टिव साइट डजंट चेंज द शेप बट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड and then the reaction takes place, enzyme remains as it is and ultimately you get your products. तो जैसे सुक्रेस एंजाइम है, सुक्रोज सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके रिएक्शन हुआ and you got your glucose and your fructose, the products. तो एंजाइम के मॉलिक्यूल का शेप बदला ही नहीं, it remained as it is. Understood the lock and key model? ओके yes तो ऐसा समझ जाना लॉक एंड की मॉडल में कि लाइक सपोज देयर इज अ वुडन चेयर। ओके या जैसे स्कूल कॉलेज में अपने जो बेंच होते हैं लकड़ी का, तो व्हेन यू सिट ऑन इट हाँ द शेप ऑफ द बेंच डजंट चेंज एंड यू विल हैव टू फिट योरसेल्फ इनटू इट। गेटिंग इट? दूसरा एग्जांपल जो दूसरा मॉडल प्रपोज्ड है, दिस वन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, आल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सिबल मॉडल। डू यू नो समथिंग कॉल्ड बीन बैग? हाँ ये एकदम मस्त रहता है। हाँ उसमें कैसा होता है कि उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। हाँ तो कैसे भी बैठो वैसे हो yes, जाता है। now when you will sit on it and when I will sit on it, बीन बैग का शेप दोनों में बदलेगा। हाँ गेटिंग इट? वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। गेटिंग इट? तो उसमें ऐसा है, देख ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो जैसे वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा अकॉर्डिंगली द शेप विल चेंज, इसलिए उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट, कि उसमें प्रॉपरली फिट हो सके वैसा इंड्यूस होते। इट डज नॉट रिमेन द सेम शेप। easy to understand, right? It's not very difficult. Okay, so induced fit model was explained by Coastland in 1959. नाम और ईयर सब याद रखना है। ये पहले प्रपोज किया था 1894 में by Emil Fischer. This one was explained in 1959 by Coastland. Okay, तो इट्स लाइक कि इसने बोला था कि थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए एंजाइम को, सो दैट कि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट इट इज एबल टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट and fit into it properly instead of a proper fixed shape unlike the lock and key model. Okay, obviously flexible रहेगा but not more than a limit. एक लिमिट तक फ्लेक्सिबल रहेगा, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो एनी सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एनी एंजाइम, वो भी नहीं करना है। गेटिंग इट? तो बाइंडिंग साइट का जो एक्टिव साइट है, ओके वो रीशेप होता रहता है बाय इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, so that the substrate is completely bound to it. So it's like when you sit on a bean bag, you will adjust your posture in such a way that you are comfortably seated. तो bean bag उसमें कुछ आगे पीछे नहीं करेगा, वो बैठने देगा आराम से। But can you do the same thing on a wooden chair? no नहीं, कितना भी कोशिश कर लो वो लकड़ी वैसे ही रहने वाली। So that is your lock and key model. Bean bag is your induced fit model. Is that clear? Easy है? yes दोनों मॉडल समझ में आ गया हाँ एंजाइम्स का, है ना? ये दिखता बहुत बहुत बड़ा छोटा कुछ है बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट एंजाइम एक्टिविटी एंड उसके फैक्टर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो एंजाइम का जो एक्टिविटी है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली द पॉइंट रिमेन्स द सेम कि फॉर एन एंजाइम टू फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली the ultimate requirement is there should be an enzyme substrate complex formed. ES complex बन गया तो रिएक्शन जरूर होगा। ओके बट ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है कि एंजाइम है
सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा। बट अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखता हूँ, एंजाइम कम रखता हूँ, तो देन बहुत सारा सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा बच जाएगा, बिकॉज एंजाइम खत्म हो गया काम करने के लिए। ओके, बट अगर मैं सबस्ट्रेट को बहुत कम रखता हूँ, एंजाइम ज्यादा रखूंगा, तो सारा सबस्ट्रेट जो है वो यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी लॉजिकल, हाँ गेटिंग इट? दैट्स व्हाई एंजाइम के एक्टिविटी का जो वेलोसिटी है, द रेट, दैट विल इंक्रीज with the increase in the substrate concentration gradually. Okay, but अब ये ग्राफ के हिसाब से देख। Okay, what does this graph tell you now? कि यहाँ पर ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस पे है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे एंजाइम के एक्शन का वेलोसिटी। तो स्टार्ट किया तभी जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, इट इज इंक्रीजिंग, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी बढ़ रहा है, बट थोड़ा सा वो कर्वेचर नजर आ रहा है। यू कैन सी द कर्वेचर ओवर हियर। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं अप टू अ सर्टेन पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, but beyond this it won't increase, it will remain steady. That means at some point of time the maximum velocity is reached. इससे ज्यादा फास्ट एंजाइम काम नहीं करेगा, even if I keep on adding more substrate. उसको बोलते हैं maximum velocity, denoted as Vmax. Got it? yes Okay, the maximum velocity at which the enzyme will function when I'm increasing the substrate concentration. तो अगर मैं ग्राफिकली जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ पॉइंट वेयर द वी मैक्स इज देयर, इसके आगे एंजाइम जो है वो स्टेडी हो जा रहा है या एक पॉइंट के बाद डिक्लाइन हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन तो इसमें ग्राफिकली जैसे ये अगर वी मैक्स है दिस पॉइंट, कंसिडर से वी मैक्स 10 मुझे मिला। ओके, तो इसका जो एग्जैक्ट हाफ वैल्यू है दैट इज 5। वहां पर उसी ग्राफ में ओके मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा कि यहां से डॉटेड लाइंस डालकर आई विल एक्स्ट्रापोलेट टू एक्स एक्सिस। तो जो मुझे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, ओके, दैट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज डिनोटेड एज Km, which is also called as the Michaelis-Menten constant, कि half of the Vmax and its corresponding substrate concentration for that enzyme. तो हर एक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विच इज करेस्पॉन्डिंग टू Km इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज योर Michaelis-Menten कांस्टेंट। समझा? हाँ ओके, तो Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द एंजाइम विल बी फंक्शनिंग, कंसिडरिंग कि टेम्परेचर, पीएच वगैरह एकदम ऑप्टिमम है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन फैक्टर एट अ टाइम। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाया जा रहा हूं, बट इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका जो हाफ वेलोसिटी चल रहा था उसमें जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था वो उसका Michaelis-Menten कांस्टेंट, डिनोटेड एज Km। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस ग्राफ। ये ग्राफ क्लियर है अच्छे से? हाँ ठीक है, सो Km या Michaelis-Menten कांस्टेंट करके जो बोला गया है, ओके, दिस इज एक्सप्लेन्ड या डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसका जो यूनिट्स होगा, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। ये सब याद रखना है, ठीक है? दैट इज मोल्स पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये Km का डेफिनेशन। ओके, एंड वो जनरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाफ ऑफ योर एंजाइम मॉलिक्यूल्स, दैट इज 50% ऑफ योर एंजाइम मॉलिक्यूल्स, दे आर बाउंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब और 50% बाकी है। 50% are bound with the substrate molecules when the substrate concentration is equal to
Km value. Okay, so for every given enzyme, it will have its own Km value. It's a constant. तो वो एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाता है, and that is used for measuring the strength of the ES complex, enzyme substrate complex. Okay, तो इसका मतलब कैसे को रिलेट करेंगे कि if your Km value is less, मतलब थोड़े देर में ही Km value आ गया, so that means there is a strong affinity between enzyme and substrate. That's how you can correlate. इसलिए तो मतलब जल्दी बॉन्डिंग हो गया, जल्दी हाफ वी मैक्स में आ गया ना, समझ में आ रहा है? ओके, एंड अगर Km वैल्यू हाई है, हाई Km वैल्यू है, तो इट विल बी वीक एफिनिटी बिकॉज इट इज टेकिंग मोर टाइम फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एंजाइम. ओके, तो मेजॉरिटी, अभी हर एक एंजाइम का अपना अपना Km वैल्यू होता है, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स Km वैल्यू का जो कांस्टेंट वैल्यूज है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻5 to 10⁻2 मोल्स. ये टर्म्स समझ जाना है, एंजाइम्स के बारे में बहुत जरूरी है. दिस कम्स अंडर द हेडिंग कॉल्ड एंजाइम काइनेटिक्स, व्हिच वी लर्न इन फिजियोलॉजी. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाला फैक्टर क्लियर है अच्छे से? हाँ. ठीक है, तो अभी जैसे किसी भी रिएक्शन में जहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व है, जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एंजाइम का कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है. कि अगर सबस्ट्रेट मैंने फिक्स रखा बट एंजाइम मैंने कम या ज्यादा किया, तो रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड. ओके, तो अगेन सी दिस ग्राफ नाउ. तो इट्स लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ओके, तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशंस. ओके, तो जैसे पहला वाला आएगा व्हेन देयर इज नो एंजाइम एट ऑल. तो जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एंजाइम अगर नहीं रहेगा, तो इट्स नॉट दैट द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, बट इट विल बी वेरी वेरी स्लो. तो ये लाइन देखना कहा जा रहा है नो एंजाइम वाला, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बट टाइम जैसे जैसे जा रहा है, प्रोडक्ट इतना इतना सही बन रहा है. यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दिस ग्राफ? Yes. ठीक है, व्हेन देयर इज नो एंजाइम, the product formed is very less even with increasing time. ओके, तो अभी मैं एंजाइम ऐड करता हूँ 1x, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट वैल्यू. ओके, तो यू आर सीइंग कि एंजाइम के नहीं रहने से कितना प्रोडक्ट बन रहा था, अब एंजाइम डालने से उसका कैसे ग्राफ बदल गया. देखो कि टाइम जैसे जैसे जा रहा है, आई एम गेटिंग सम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, बट देन आई डबल द क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम 2x. कि अगर मैंने यहाँ 1x की जगह 10 ml लिया था, तो उसका मैंने 20 ml कर दिया, और वॉट एवर वैल्यू, आई जस्ट डबल्ड इट. ओके, तो डबल करने की वजह से नाउ सी द ग्राफ कि कब से कम टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बन गया. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. तो एंजाइम में ज्यादा डालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. एंड उसी तरह से बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मुझे रिएक्शन का रेट को डिक्रीज करना हो, तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को भी डिक्रीज करना होगा. दैट्स हाउ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ समझ में आ गया? हाँ. इजी है, राइट? देन टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, बट यू नो वेरी वेल, राइट? कि जैसे मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर, दैट इज अकरिंग एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, जो एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए यू कैन इमेजिन कि जैसे कभी हमें बुखार आ जाते और बॉडी टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, तो ज्यादा बुखार आ गया तो डू यू गेट द टेस्ट ऑफ फूड? नहीं आता है ना. कितना भी चटपटा वगैरह खिलाओ, मुंह का टेस्ट एकदम ब्लैंड हो जाता है, एंड डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है. यू कैन नॉट ईट मच बिकॉज टेम्परेचर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. खाने का ही मन नहीं करता. एग्जैक्टली, बिकॉज टेम्परेचर भी अफेक्ट हो गया है, एंड इवन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज अफेक्टेड. गेटिंग इट? तो दैट्स हाउ एनिमल किंगडम में यू हैव सीन कि
aves and mammals are homeotherms, you remember that? हाँ. है ना, दे आर फिक्स बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज सारे सेल्स के हम्म. एंजाइम सब ऐसे इवॉल्व हो गए कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में काम करेंगे. ओके, सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन generally increases by a rise in the temperature, but obviously up to a certain limit. Above 40 degrees Celsius, enzymes get denatured, and below a certain temperature, enzymes are inactivated. ओके, तो जैसे मैंने ग्राफ बताया था ड्रॉ करके, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, activity of the enzyme also you can see it's changing. Okay, you understood the meaning of the word optimum temperature also? Yes. ठीक है, temperature at which enzymes show maximum activity. Okay, and the same way there is also an effect of pH. Okay, so pH का भी you can see इसी तरह का ग्राफ बनता है कि with an increasing pH up to a certain extent enzyme activity will increase, but optimum pH के बाद भी अगर मैं pH बढ़ाया जा रहा हूँ तो then there will be a decline in the activity. तो pH is also very very important factor. So temperature pH के लिए generally you get same types of graph. Okay, and then the other substances also play a major role. हम लोग factors point of view पढ़ रहे हैं. So it's like in the presence or the absence of some other substances like coenzymes, हमने co-activators, inhibitors, ऐसे बहुत सारे अलग अलग molecules रहते हैं depending upon the enzyme, depending upon the requirement. Okay, so it's like कुछ enzymes होते हैं जिसमें coenzyme और एक apoenzyme करके रहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनका एक्टिवेटर्स अलग रहते हैं. अब जो एक्टिवेटर्स होते हैं दे इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस द रेस्पेक्टिव एंजाइम इफेक्ट फंक्शनिंग चेंजेस. ठीक है, अच्छी तरह समझा ये पार्ट? हाँ. एनी डाउट? दैट कम्स No. टू द एंड ऑफ द स्टडी ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में हमने क्या क्या देखा अभी कि सबसे पहले we saw the brief history कि what are enzymes, what are their हाँ. chemical nature. Okay, there's something called coenzymes. Okay, we also saw cofactors, right? वो सब हमने देखा. And then after that we discussed about the properties of the enzymes, the nomenclature of the enzymes, the different classification types for enzymes. Okay, that was followed by the ये enzyme substrate complex के models, lock and key model and induced fit model. induced. Correct. And उसके बाद we have seen the different factors that affect the enzyme activity. Okay, enzymes के बारे में बहुत कुछ है. ठीक है, कैसा लगा ये टॉपिक? हाँ. Good. अच्छा Okay. था.